Hello children, welcome to my Maths class. This is class 6 NCERT Maths and we are going to start Chapter 4 Basic Geometrical Ideas. Before starting the class, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and chapter 3 also. So please check it out. In previous classes, we have learned about many calculations. So now we are going to learn about some basic geometrical shapes. In this class, we are going to cover the following topics. Okay, first introduction, then points, a line segment, a line, intersecting lines, parallel lines, then some try these questions also. First, we will start with the introduction part. In smaller classes, we learned about solid shapes, plane shapes and all. Okay, so here we are going to learn geometrical, that is basic geometrical shapes. What do you mean by the term geometry? Geometry का मतलब क्या है? Geometry is the English equivalent to the Greek word. ये क्या है? Greek word है. Okay, क्या है Greek word? Geometron. Okay, geo means geo का मतलब क्या है? Earth. And metron का means measurement. Okay, metron means measurement. Okay, so हम geometry के बारे में पढ़ेंगे मतलब earth and measurement, that is shapes के बारे में, उसकी measurement के बारे में हम learn करेंगे. Okay, according to historians, the geometrical ideas shaped up in ancient times probably due to the need in art, architecture and measurement. According to historians, geometrical ideas कब से आया? That is shaped up in ancient times. बहुत पुराने टाइम से ये geometrical ideas है. Probably due to need in art. That is art diagram वगैरह हम करते हैं. Okay, architecture, measurement. इसके वजह से ये geometry शुरू हुआ. Okay, construction of magnificent palaces, temples, lakes, dams and cities, art and architecture propped up these ideas. Okay, ये सब जो construction करते हैं palaces, temples, lakes, dams, cities, art, architecture, okay, ये सब construction करने के टाइम पे ये ideas शुरू हुआ. Okay, even today geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurements, architecture, engineering, cloth designing, etc. Not only in olden days, nowadays also geometrical ideas कहाँ से मतलब art में से, आर्ट वर्क में, मेजरमेंट से, आर्किटेक्चर करते हैं. ओके, इंजीनियरिंग में भी आर्ट है. ओके, ज्योमेट्रिकल शेप्स है. क्लॉथ डिजाइनिंग, जो क्लॉथ वगैरह बनाते हैं उसमें भी डिजाइंस बनाते हैं, तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज, दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह भी होता है. सो पैटर्न्स होता है. सो वहीं से ये ज्योमेट्रिकल आइडियाज शुरू हुआ. ओके, here you will learn some interesting facts, okay, that will help you know more about the shapes around you. Okay, so in this class, okay, in this basic, that is chapter 4 geometrical shapes में हम कुछ interesting facts learn करेंगे. okay, ताकि आपको shapes के बारे में और पता चलेगा. okay, next, so the first introduction हो गया है. अभी points के बारे में हम पढ़ेंगे. points means क्या है? point मतलब एक dot है. okay, एक dot रखते हैं ना, full stop, dot. okay, ये सब को points बोलते हैं. a point is a mark of position. point का मतलब क्या है? एक position की mark होता है. okay, it has no length, breadth और हाइट. ओके, उसके लिए लेंथ नहीं होता है. ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट नहीं होता है. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. ओके, अ पॉइंट, दैट इज पॉइंट मतलब एक लोकेशन के बारे में डिटरमाइन करते हैं. ओके, बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर. ओके, अभी ये पेपर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कीप दिस एज अ पेपर. ओके, ये जो पेपर है, पेपर में एक आप डॉट बना रहे हो. ओके, ये जो डॉट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. ओके, जो पेंसिल की शार्प टिप है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. ओके, टिप ऑफ अ कॉम्पस, कॉम्पस की जो टिप है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल. ओके, एक नीडल की दैट इज पॉइंटेड एंड है, उसको भी हम पॉइंट बोलते हैं. ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ओके, सो दीज पॉइंट्स विल बी रेड एज point A, point B and point C. Of course, the dots have to be invisibly thin. Okay, dot बहुत दैट इज बड़ा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इनविजिबली थिन. तो डॉट्स ये आपको यहाँ दिख रहे हैं. ओके, ये सब इनविजिबली थिन है. ओके, बहुत बड़ा डॉट ऐसे नहीं होना चाहिए. शार्पर द टिप
थिनर विल बी द डॉट. ओके, जितनी शार्प होता है टिप, ओके, जो इसके लिए जो टिप होता है, ओके, कॉम्पस की टिप, पेंसिल की टिप, ओके, शार्प पेंसिल की टिप, देन पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, ओके, वो सब जितनी शार्प होता है थिनर विल बी द डॉट. जितनी शार्प होता है उसी हिसाब से आपकी डॉट मिलता है. ओके, ये छोटा है, दैट इज, फिर बड़ा, अगर शार्प नहीं है थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा. ओके, ऐसे करके शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट. ओके, next we are going to do try these questions. Okay, this is from page number 70. Okay, दो questions है, we will do both the questions. First one, with a sharp tip of the pencil mark 4 points on a paper and name them by the letters A, C, P, H. Try to name these points in different ways. One such way could be this. Okay, हमें क्या करना है, पेंसिल लेना है, उसके जो शार्प टिप है आपको शार्प करके पेंसिल लेना है, एंड जो टिप है शार्प टिप उसमें से एक पेपर में आपको 4 पॉइंट्स मार्क करना है. ओके, वो क्या है, ए, सी, पी एंड H. ओके, ऐसे करके लेटर्स आपको पॉइंट के साथ मार्क करना है. ओके, ट्राई टू नेम दीज पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज. ओके, हमें क्या करना है, डिफरेंट वेज में हमें पॉइंट्स मार्क करना है. वन सच वे कुड बी दिस. ओके, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. ओके, सो सॉल्यूशन, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लिख सकते हैं. ओके, लेटर्स रखे. ओके, पॉइंट E, पॉइंट K, पॉइंट S, पॉइंट M, पॉइंट G, पॉइंट O, पॉइंट T. ओके, ऐसे करके आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A star in the sky also gives an idea of a point. Okay, identify at least 5 such situations in your daily life. Okay, sky में जो स्टार है वो हमें एक पॉइंट के बारे में आइडिया देते हैं. ओके, स्टार कैसे शेप में होता है, दैट इज स्टार शेप, तो सबको पता है. ओके, यहाँ से नीचे से आप देख रहे हो स्टार को, तो आपको कैसे लगेगा, स्टार जैसे नहीं दिखता है, वो एक पॉइंट जैसे दिखता है. ओके, 5 सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे. क्या क्या है, टिप ऑफ अ पेंसिल. ओके, जो पेंसिल की जो टिप है उसको हम ले सकते हैं. टिप ऑफ अ नीडल. ओके, नीडल की जो टिप है वो. कॉर्नर ऑफ अ डेस्क, डेस्क की जो कॉर्नर है, ओके, जो डेस्क है उसकी कॉर्नर है, उसको हम ले सकते हैं. देन कॉर्नर ऑफ अ पेपर, पेपर की कॉर्नर है वो भी ले सकते हैं. टिप ऑफ अ पेन, पेन की टिप भी ले सकते हैं. ओके, सो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट लाइन सेगमेंट. ओके, सो लाइन सेगमेंट क्या होता है. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन whose end points are fixed. Okay, so जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स है वो फिक्स्ड होता है. ओके, यहाँ से एक पॉइंट, दैट इज एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो. ओके, उसकी जो पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है. जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो एंड पॉइंट है दोनों फिक्स्ड होता है. ओके, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड. ओके, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फिक्स्ड होता है. ओके, it has 2 endpoints A and B, is named as AB, that is line segment AB or BA, that is line segment BA. This दोनों वे में हम बोल सकते हैं. ओके, ये जो बॉक्स है दैट इज रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स है. ओके, इसमें जो लाइन सेगमेंट है, ओके, ये A B है. ओके, दोनों पॉइंट्स क्या है, फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा. ओके, A पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, B एंडिंग पॉइंट है, अदरवाइज B स्टार्टिंग पॉइंट है, A एंडिंग पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट BA. ओके, इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स दिया है. ओके, टेक अ thin thread, hold its 2 ends and stretch it without a slack. It represents a line segment. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं. That is, we have to hold it tightly. थ्रेड को टाइटली हमें होल्ड करना है. ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट हमें पता है. सो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, सम मोर एग्जांपल्स. ओके, एन एज ऑफ अ बॉक्स, a tube light, the edge of a postcard. Okay, these are some more examples of line segment. Okay, next try these questions. This is from page number 71. First question, name the line segment in the figure. फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स है हमें नेम करना है. ओके, 4.2 में जो फिगर में लाइन सेगमेंट दिया है, दैट इज एक फिगर दिया है, उसकी लाइन सेगमेंट नेम करना है. ओके, इज A the end point of each point of each line segment. They are asking ये जो point है, ओके,
ये पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है, सारे जो लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट है, ओके, वेदर दे आर आस्किंग ये एंड पॉइंट है क्या, ओके। सो सोल्यूशन क्या है, द लाइन सेगमेंट्स क्या है इसमें, एक तो ए बी और बी ए, एक तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, एक तो ये वाली लाइन सेगमेंट है, दूसरा दैट इज फर्स्ट वन इज ए बी, ओके, लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए, सेकेंड वन इज ए सी और सी ए, ओके, दोनों वे में हम लिख सकते हैं, ओके। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, यस, A is the end point of each line segment. Okay, we are going to see about line. Okay, line तो सबको पता है. Okay, जो line है हम ऐसे draw करते हैं उसको हम line बोलते हैं. Okay, but in detail we are going to see. Imagine that the line segment from A to B, that is line segment AB. Okay, is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. Okay. एक एग्जाम्पल हम लेंगे. सो एक लाइन सेगमेंट है ये भी, ओके, ए बी की एक लाइन सेगमेंट है, ओके. सो इट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए की तरफ एक्सटेंड हो रहा है एक तरफ से, एंड दूसरी तरफ बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ओके. इसमें ए के लिए भी कुछ एंड नहीं है, बी की तरफ भी कुछ एंड नहीं है, ओके. सो अ लाइन थ्रू 2 points A and B is written as AB. It extends indefinitely in both the direction. Okay, दोनों तरफ में, okay, एक लाइन है, okay, दोनों तरफ में it goes on and on. Okay, उसके लिए कोई end point नहीं है. So it contains a countless number of points. उसमें countless number of points है. Okay, 2 points are enough to fix a line. Line के लिए 2 points enough है. Okay, we say 2 points determine a line. Okay, line में 2 points determine करना enough है, okay. The adjacent diagram is that of a line PQ, okay. नीचे जो example दिख रहे हैं, okay, PQ written as line segment PQ, okay. Sometimes a line is denoted by a letter L, M. कैसे नेम करते हैं, L और M करके डिनोट करते हैं. So what do you mean by line? Line के लिए कोई end point नहीं है. It extends on both the sides, both the directions, okay. 2 points are enough to fix a line, okay. लाइन सेगमेंट के लिए 2 एंड पॉइंट्स होता है, बट लाइन के लिए एंड पॉइंट्स नहीं होता है, ओके. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके. 2 लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, ओके. 2 लाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं, दैट इज दोनों लाइन ऐसे होना चाहिए, ओके. सो क्या है ये, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक जगह पे, ओके. इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ओके. 2 लाइन्स, ओके, L1 एंड L2, 2 लाइन्स है, एक तो L1 है एंड दूसरा L2 है, ओके, आर शोन इन द डायग्राम. बोथ द लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट P, ओके. दोनों जो लाइन है पॉइंट P के थ्रू पास होता है, ओके. वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P, ओके. हम क्या बोलेंगे इसको, दोनों L1 एंड L2 कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओके. इफ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट, ओके, 2 लाइंस को एक कॉमन पॉइंट है, ओके. दोनों लाइंस को अभी एक ही कॉमन पॉइंट है, ओके. दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके. उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ओके. Following are some models of a pair of intersecting lines, okay. So इसमें some examples और models दिया है, okay. क्या है ये, 2 adjacent edges of your notebook. The letter X of the English alphabet, okay. जो letter X है, X को ऐसे हम लिखते हैं, okay. उसमें जो intersecting point कहाँ है, ये है, okay. एक ही point में intersect हो रहे हैं, okay. So intersecting line है ये, ओके. नेक्स्ट, क्रॉसिंग रोड है, ओके. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसमें कहाँ है, यहाँ है, ओके. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस हम छोटे क्लास में भी किया है ना. दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, ओके. पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ओके. इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं. सम मोर एग्जांपल्स, रेलवे ट्रैक, स्केल, ये सब पैरेलल लाइंस के एग्जांपल. ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है, ओके. इसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ओके. लुक एट दिस फिगर, द टॉप ABCD इज फ्लैट, ओके. AB एंड BC आर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, ओके. ये जो AB है, ओके, AB एंड BC, ओके. ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक पॉइंट पे, ओके, दैट इज कॉल्ड बी, ओके, बी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट डी, ओके। ये जो ए डी है, ओके, ए डी एंड डी सी कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? डी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। सो ये इंटरसेक्टिंग तो हमें पता है, ओके। Do the lines AD and BC intersect? Okay, जो AD है, okay, AD यहाँ पर है and BC यहाँ पर है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, ओके, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ओके। वैसे जो AB एंड CD ये दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके, सो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ओके। लाइंस लाइक दीज विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल एंड और कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ओके। जो लाइंस मीट नहीं होता है, दैट इज एक पॉइंट में मीट होता है, वैसे मीट नहीं हो रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल एंड और कॉल्ड पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, ओके। इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, वी राइट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। सो हम कैसे लिखते हैं पैरेलल को? ऐसे लिखते हैं, पैरेलल को 11 जैसे लिखते हैं, ओके। सो ए बी, okay, AB and CD are parallel to each other. If two lines L1 and L2 are parallel, we write as L1 is parallel to L2, okay. अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर पैरेलल है, उसको हम कैसे लिखते हैं? L1 L2 करके लिखते हैं। L1 is parallel to L2, okay. We will see some examples for this. The cross bars of this जो विंडो है उसकी जो लाइंस होता है, that is ऐसे रॉड्स होता है ना, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ओके। उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, ओके। विंडो की जो क्रॉस बार्स है उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। वैसे ऑपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, जो रूलर है, स्केल है, उसकी जो ऑपोजिट एंड्स, ओके, ये और ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंड्स को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ओके। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, रेलवे लाइंस, ओके। जो ट्रैक है वो पैरेलल लाइंस होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट रेस। व्हाट डू यू मीन बाय रेस? रेस का मतलब क्या है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, ओके। एक लाइन है, ओके, इसमें एक पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, ओके। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, ओके। एक जगह से ये स्टार्ट हो जाता है, ओके, ए से अगर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके, एंड इट गोज ऑन इन वन डायरेक्शन, गोज ऑन एंड ऑन, ओके। उसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लुक एट द डायग्राम ऑफ रे शोन हियर, ओके। 2 points are shown on the ray, okay. 2 points है रे में, A and P. They are A starting point है, okay. A को हम starting point बोलते हैं, B को क्या है? A point on the path of the ray. When it is going in one direction, okay, ये जो point P है उसके through ये जाएगा, okay. So that is called ray, okay. So ray के लिए starting point है, ending point नहीं होता है, okay. So we denote this as AP करके हम डिनोट करते हैं, ओके। दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस में से जो लाइट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। वैसे रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च जो टॉर्च लाइट है उसमें से जो लाइट निकलता है, ओके, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, ओके। पाथ के थ्रू जाएगा बट उसका एंड पॉइंट नहीं है, ओके। वैसे सन रेज। Next we are going to try these questions. This is from page number 74. Okay. First one, name the rays given in this picture. जो पिक्चर में रेज दिया है उसको हम नेम करना है। एक तो TA है, okay. The other one is TN है. Then third one is TB. Then NB. Okay. So इसको हम ऐसे ही नेम करेंगे। Question number 2 is T a starting point of each of these rays. Okay. जो T है ये स्टार्टिंग पॉइंट, सारे जो रेस के यही स्टार्टिंग पॉइंट है? नो, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सिंस टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनबी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ओके। अगर टीबी के लिए एंड टीए के लिए पूछेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। टीएन के लिए भी है ये स्टार्टिंग पॉइंट, बट एनबी के लिए नहीं है, ओके। इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, ओके। सो क्या क्या लर्न किया हमने? एक तो इंट्रोडक्शन हो गया है, देन पॉइंट्स, line segment, line, then intersecting lines, parallel lines,
लास्ट में हमने रेस के बारे में भी देखा. Hope the explanation was clear to you. That's all for today. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2 and chapter 3 also. So please check it out. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.